Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to study the 6th standard maths percentage and the last question of this chapter, that is the question number 3. Solve the following. In this, all the questions are based on the word problems of the percentage. So here the first question is, Shabana scored 736 marks out of 800 in her exam. What was the percentage she scored? मतलब आपको क्या दिया है कि 736 मार्क्स में से उसको 800 में से 736 मार्क्स मिला है, तो आपको ये बताना है कि उसने कितने परसेंटेज जो है मार्क्स स्कोर किया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट ओवर हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट डाउन द गिवन information, that is marks scored. Is equals to 736. Total marks is equals to 800. Now we are supposed to find out the percentage. So therefore this will be question mark. Then 736 upon 100, 800 into 100. This zero get cancelled. Now let us go and divide with the 8. So it will be how much? 8 ones are 8. 8 nines are 72. So 1 will be carry forward. 8 twos are 16. So it will be 92 percentage. Getting me? So therefore she scored 92 percentage of marks. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि she scored the 92 percentage of marks. तो ये हमारा फर्स्ट सम जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है. Let us go to the second one. And in the second question, there are 500 students in the school in Dahihanda village. If 350 of them can swim, what percentage of them can swim and what percentage कैन नॉट. मतलब एक स्कूल है जिसमें टोटल 500 स्टूडेंट्स है, जिसमें 350 जो है वो स्विमिंग करना जानते हैं. तो आपको ये पूछा है कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट जो है वो स्विमिंग करना जानते हैं और कितने परसेंटेज स्टूडेंट स्विमिंग करना नहीं जानते. तो आइए इस सम को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे. So for the second question we are going to write down here total number of students is equals to 500. Now 350 can swim. Number of students can swim is equals to 350. Now here we are supposed to find out that those who cannot swim. So here we are going to write down number of students can not swim is equals to 500 minus 350 is equals to how much? 150. So here now 150 students are there, those who don't know the swimming or who cannot swim. So here we are going to find out the percentage for the students. Percentage of students can swim is equals to 350 upon 500 into 100. These 0 get cancelled. Now here's 5 ones are 5, 5 sevens are 35 and then 0. So that will be equals to 70 percentage. Okay, तो ये जो है हमारे यहाँ पर आंसर आ गया किसके लिए? स्विम करने वालों के लिए. नाउ वी आर गोइंग फर्दर विद द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स can not swim is equals to
here what we are going to do here, 150 upon 500 into 100. These two zero get cancelled. Now 5 ones are 5, 5 threes are 15 and then 0. So therefore 30%. Getting me? This is the answer. Now here we are supposed to write down 70% of students can swim while 30% of students can not. हो गया. तो इस तरह से ये हमारा सेकेंड वाला सम भी सॉल्व होता है. तो अब हम जाएंगे थर्ड वाले पे. इफ प्रकाश sowed jowar on the 75% of the 19,500 square meter of his land, on how many square meter did he actually planted jowar? मतलब आपको क्या बोल रहा है कि प्रकाश ने अपने पूरे फील्ड का, अगर 19,500 स्क्वायर मीटर है तो उसके सिर्फ 75% पर ही उसने जो है जवार उगाया है. तो यानी कितने लैंड पर उसने एक्चुअली जो है जवार को ग्रो किया है, हमको ये बताना है. Now here for the third question we are going to write down total area of land is equals to 19,500 square meter. Now it is given that percentage of jowar grown, percentage of area on which jowar grown is equals to 75%. ओके, ये हमारे पास दिया हुआ है. अब हमको क्या करना है, एक्चुअल लैंड का हमको फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पे कैसे लेंगे, पार्ट ऑफ लैंड ऑन विच jowar grown is equals to 75% मतलब divided by 100 into 19500. These zero get cancelled. Now let us go and multiply with the 75 to the 195. तो इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए 195 and then 75 we are going to multiply together. 5 5s are 25, 2 will be carry forward, 5 9s are 45, 45 plus 2 it will be 47 का 7, 4 will be carry forward, 5 1s are 5, then it will be 4, so it is 9, then 7 5s are 35 है ना, and then 3 will be carry forward, 7 9s are 63, 63 plus 3 it will be 66, so here 6 will be carry forward, 7 1s are 7 plus 6 it will be 13. Getting me? So here we are going to add them together. So 5 का 5, 7 plus 5 it will be 2, that is 12. तो यहाँ पे 9 plus 10, 10 plus 6 it will be 16 का 1 carry forward, so it will be 4. So here it is 1625. So 1000 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14,625 square meter. Getting me? 14,625 स्क्वायर मीटर. तो यहाँ पर जो है हमको क्या पता चल गया, एक्चुअल लैंड जो है वो कितना है, 14,625 है. ठीक है, तो अब जो है हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे. मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा ये आंसर आने के बाद हम इसको जो है फाइनली आंसर लिखेंगे. तो इस तरह से हमको लिखना है. देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने आंसर लिखा 14625 स्क्वायर मीटर, and after that we have written here therefore the part of land on which he planted a jowar will be
14,625 स्क्वायर मीटर, 14,625 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से हमारा थर्ड वाला सम भी कंप्लीट होता है। लेट अस गो टू द fourth one, and the fourth one is Soham received 40 messages on his birthday. Of these, 90% were birthday greetings. How many other messages did he get besides the greetings? मतलब यहाँ पर क्या दिया है, सोहम को टोटल 40 मैसेजेस जो है उसके बर्थडे पे रिसीव हुए, जिसमें से 90% तो उसके बर्थडे ग्रीटिंग्स थे। तो आपको ये बताना है कि कितने मैसेजेस उसको एक्चुअल में जो है अदर देन द बर्थडे ग्रीटिंग मिला है, मतलब जिसमें उसकी खैरियत पूछी गई थी या कुछ और था लेकिन वो बर्थडे ग्रीटिंग्स नहीं थे। तो चलिए इस सम को भी हम सॉल्व करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस is equals to 40, है ना, and the 90% he have received. Percentage of birthday messages is equals to 90%. ओके, तो अब हमको क्या करना है, पहले ये 90% जो है ये कितने मैसेजेस होते हैं ये हमको एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बर्थडे मैसेजेस या फिर ग्रीटिंग्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू नाउ यर 90% है ना इंटू 4040. This one get cancelled. So here 9 4s are 36. So therefore कितने मैसेजेस हमको मिले हैं, नंबर ऑफ बर्थडे मैसेजेस इज इक्वल्स टू 36. ओके, अब हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस में से अगर हम ये 36 निकाल दें तो हमको कौन से मैसेजेस मिल जाएंगे जो कि बर्थडे ग्रीटिंग्स नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ अदर मैसेजेस इज इक्वल्स टू टोटल मैसेजेस माइनस number of birthday messages. ठीक है, therefore it will be how much, कैसे आ जाएगा, 40 minus 36 is equals to 4. तो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore only 4 messages he received other than birthday greetings. ओके, तो ये इस तरह से हमारी ये सम जो है कंप्लीट होता है। इसमें क्या दिया हुआ था आपको, नंबर ऑफ मैसेजेस दिया था टोटल और परसेंटेज दिया था। हमने क्या किए, इस मैसेज यहाँ पर इसको रख के सॉल्व किया और पहले क्या किए, टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस ही रिसीव फॉर द बर्थडे ग्रीटिंग्स वो निकाले। उसके बाद हमने क्या किए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस में से जो नंबर ऑफ बर्थडे मैसेजेस थे उनको माइनस कर दिए, तो हमको यहाँ पर कौन सा मिल जाएगा, जो अदर देन बर्थडे ग्रीटिंग्स था। तो इस तरह से ये सम भी जो है हमने सॉल्व कर लिए। नाउ लेट अस गो टू द फिफ्थ वन, एंड इन द फिफ्थ वन ऑफ द 5676 people, means 5675 people in a village, 5448 are literate. What is the percentage of literacy in the village? मतलब आपको क्या दिया है, 5675 टोटल पीपल है,
उसमें से सिर्फ 5448 जो है वो पढ़े लिखे हैं। लिटरेट का मतलब होता है पढ़े लिखे, यानी उन्हें पढ़ना लिखना आता है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द लिटरेसी इन द विलेज, हमको ये पता करना है कि कितने % लोग जो है पढ़े लिखे गांव में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस सम को भी हम अच्छे तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ योर टोटल number of people in a village is equals to 5675. Okay, now number of literate in village is equals to 5448. ओके, अब हमको क्या करना है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट द परसेंटेज, सो देयरफॉर इट विल बी क्वेश्चन मार्क। नाउ हियर परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इज इक्वल्स टू, नाउ 5448 अपॉन, यानी ये नंबर ऑफ लिटरेट पीपल है टोटल नंबर ऑफ पीपल में से, तो 5675 इंटू 100। ओके, तो आप जो है हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कैसे करेंगे, 5 के टेबल से जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अगर हम इसको 5 के टेबल से ले तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ओके, 5 2 जा 10, ओके, एंड देन 20। तो यहाँ पर जो है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 कैरी फॉरवर्ड, सो इट विल बी 17, 5 3 जा 15, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, अगेन विद द 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 4 जा 20, एंड देन 5 2 जा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 जा 10, है ना। तो यहाँ पर 3 बचेगा, 5 7 जा। तो अब ये जो है नंबर को हम क्या करेंगे, 227। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा, 5 4 4 8 इंटू 4 अपॉन 2 2 इंटू 7। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आता है 96%। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 96% of people are literate in a village। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सम भी जो है वो कंप्लीट होता है। और आगे जो है हम 6th वाला जाएंगे। सो इन द 6th क्वेश्चन, in the election 1080 of the 1200 women in Jambul Gaon cast their vote, while 1360 of the 1700 in Vadgaon cast theirs. In which village did a greater proportion of the women cast their votes? मतलब आपको क्या दिया है, यहाँ पर दो जगहों का कंपैरिजन करके दिया है कि एक गांव में इतनी औरतों ने, इतने में से इतनी औरतों ने जो है वोट दिया है, दूसरे गांव में इतने में से इतनी औरतों ने वोट कास्ट किया है। तो हमको ये बताना है कि परसेंटेज किस गांव का ज्यादा है किसके मुकाबले में। ठीक है, तो आइए इसको भी हम सॉल्व करेंगे। टोटल women in Jambul Gaon is equals to 1200. Vote number
of women casted vote is equals to 1080 in जाम्बुल गांव। ओके, ये लिखा हमने यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, ये वाले का पहले हम परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सो द परसेंटेज ऑफ विमेन कास्टेड वोट इज इक्वल्स टू 1080 अपॉन 1200 into 100। ओके, तो 0 0 गेट कैंसिल ना, 12 1 जा 12। तो यहाँ पे 12 के टेबल से नहीं जाएंगे हम किससे जाएंगे, हम 2 के टेबल से जाएंगे। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना, एंड देन 2 5 जा 10, देन 2 4 जा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 4 जा 8, ठीक है, एंड देन 0, सो इट विल बी 540। नाउ यहाँ पर जो है 6 1 जा 6 एंड देन 6 9 जा 54, so it will be 90. So here it will be percentage of women casted vote in जाम्बुल गांव इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90%। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, किसके लिए निकालना है, वडगांव के लिए भी सेम इसी तरह से निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ विमेन इज इक्वल्स टू कितना है, 1700। Okay, then after that what it is given, that how many have casted, number of women casted vote in Vadagaon is equals to 1360. Okay, then what we are supposed to do, percentage of women casted vote in Vadagaon is equals to 1360 upon 1700 into 100। ठीक है, ये वाला 0 गेट कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो यहाँ पे 17 अपॉन ये है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है, यहाँ पर 80% आता है। तो ये जो है हमारा 80%, बिकॉज 17 8 जा 136 एंड देन 0 विल गेट above side, so 17 1 is 17, it will be 8 and 80, so the answer is 80%। अब इसके आगे जो है हमको क्या करना है, कंपेयर करके लिखना है। तो आइए हम ये लास्ट सम को भी लिखते हैं। सो therefore more percentage of women casted vote in जाम्बुल गांव देन वडगांव। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमने कंप्लीट कर ली है, क्योंकि वहां पर जो है जाम्बुल का कितना आया था, 90% आया था, और वडगांव का यहाँ पर कितना आया था,
80%। तो इस तरह से ये जो है दोनों का कंपैरिजन से हमको पता चलता है कि कितना कंप्लीट होता है। यहाँ पर जाम्बुल में जो है ज्यादा औरतों ने वोट दिए वडगांव के मुकाबले में। तो इस तरह से ये वाला सम जो है हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए और इसी के साथ ये चैप्टर भी जो है आपका कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इससे आगे का चैप्टर या नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान होगा। आप इंशाल्लाह उसको देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे आगे वाले सारे चैप्टर्स के लिए वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही बनाते रहेंगे। आप चाहते हैं कि अगर हम आपसे इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहे तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।